Sorry, actually, I was disconnected during the talk. I don't know where I was. पता नहीं आपने कितना सुना या कितना नहीं सुना. Can anybody just let me know where I was? Am I audible? Yes, Roshi. मैम वो आपने कहा था वो बच्चा कहता है कि मैं एक बात करूं फिर उसके बाद आपकी आवाज नहीं आई मैम आई थिंक आप डिस्कनेक्ट हो गई ठीक है ठीक है. I was saying कि उस बच्चे ने कहा कि जो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो है ना मतलब शिकायत something that I don't want to record. Okay. The role of SSCP. Today I'll discuss something about the role of SSCP. So in outline we'll discuss about the Companies Act. Companies Act में सबसे पहले हम discuss करेंगे the role of SECP. Security and Exchange Commission of Pakistan. Keeping in view, this is actually discussing in the article number 8 and 9. 8 and 9 के अंदर हमने जो है discuss करना है the role of SECP is defined. Then we'll discuss something about the commencement of the business. Jazakallah. Okay, we'll discuss about the commencement of the business by a public limited company. It is mentioned in actually section number 19 to 26. Sorry for the disturbance. Actually, today I'm at home, so that's why there is somehow the disturbance. उसके लिए मैं sorry कर देती हूँ आपको advance में. Then we'll talk about the types of the meeting. Okay. So I'll try to cover this topic. These are the bit important topic. Role of SCP. So we discuss the remaining topics. If you go through the outline, so we discuss almost all the topic. मेरी कोशिश ये है कि आज ये जो है मैं क्लास जो है वाइंड अप करूँ क्योंकि आज ये थोड़े से टॉपिक्स रहते हैं हमारे जो इंशाल्लाह आज पूरी हो जाएंगे. तो let me start about the role of SCP. ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा डायरेक्ट क्विज हो फिर जो रिमेनिंग क्लासेस है वो हम नहीं कर सकते. सो प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में सिर्फ हम क्विज कर लेंगे नेक्स्ट वीक में. ठीक है जी. Okay, now let's first discuss about the SCP, Security and Exchange Commissions of the Pakistan. uh, Securities and Exchange Commission of Pakistan is actually one of the large organization. It has the army of the staff. It is actually established by the federal government. This is actually established by the federal government in replacement of the corporate law authority. कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को जो है रिफ्यूज करके उसके बाद इन्होंने जो है ना फेडरल गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को जो है उनकी रिप्लेसमेंट में ये बनाया था. नाउ जो कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी थी इट हैज वेरी लिमिटेड राइट्स एंड इट इज वेरी लिमिटेड यू नो intervention into the business. The corporate law authority was not as proficient, is independent. There was a lot of influence uh, of the government and the other bureaucratic parties that used to influence the corporate law authority because they were not having a very good and concrete act that can guide them, that can because before that it was the ordinance. Ordinance 19 जो है ना 80 जो है ना it was जो है ना it was 1987 ordinance that was actually related to that. तो वो जो है उनका इतना एफिशिएंट नहीं था. फिर जब एसएससीपी बनाई गई
तो पहले तो उनके पास वही ऑर्डिनेंस था जो उनको फॉलो करते रहे। बाद में उन्होंने जो है 2017 में एसएससीपी के जो है ना, फेडरल गवर्नमेंट ने खुद रियलाइज किया कि हमें एसएससीपी को जो है ना एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बनानी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, अपनी डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट हो, अपने एक्ट्स में बड़ी ट्रांसपेरेंट हो, और ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो SSCP has a large number of the people. They actually look after and actually see. They look after many of the organization, as I already discussed before. They see the corporate sector. They corporate sector को देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को देखते हैं, ये जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग जो होती है, एक होती है बैंकिंग फाइनेंसिंग जो ट्रेडिशनल बैंकिंग होती है वो आपको फाइनेंसिंग करते हैं, कुछ ट्रेडिशनल दूसरी फाइनेंसिंग होती है जो है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग के थ्रू देते हैं। जैसे जो है ना एक ये जो रजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं आपको फाइनेंसिंग देती है, छोटी मोटी फर्म्स को, वो बैंकिंग नहीं होती पर अदर ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्राइवेट जो है ना प्राइवेट काफी पेंशन स्कीम्स भी होती है, जिस तरह से हमारी पाक कतर की पेंशन स्कीम, वो गवर्नमेंट की नहीं है, वो प्राइवेट की है। तो इस तरह से बहुत सारी प्राइवेट स्कीम्स हैं। जो चार्टर्ड एक अकाउंटेंट होता है सीए, उसको भी जो है ना उसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को या उसकी एलिजिबिलिटी को भी एसएससीपी खुद देख रही होती है। बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो कंपनीज को, बैंक्स को जो है ना क्रेडिट रेटिंग देती है कि जो है ना ये कंपनी बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ पेइंग द क्रेडिट एंड ईटीसी। और बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, सेलर्स होते हैं, and a lot of other people. So SSCP look after and regulates non-banking all the company, either it's a private or the public or a corporate insurance, and they also look after the regulation or registration process and all the details. So most of the people they recruit, mostly they recruit the people who are working with them. A lot of people are actually bankers, actually accountants, lawyer, economists. Those people who have years of experience, they recruit an SSCP because they regulate, they check, they audit, they investigate everything. In that perspective, though, SSCP hire a very, they have hiring a very concrete hiring policy that is being followed under जो है ना कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर मेंशन है कि किस तरह से कौन से लोगों को जो है रिक्रूट करेंगे। और पॉलिसी देर वन ऑफ द बिगेस्ट बोर्ड दैट इज द पॉलिसी बोर्ड, और उसके अंदर जो है किस तरह से ये सिलेक्ट करते हैं, दे हैव अ डिटेल प्लान फॉर दैट। जो 5 लोग होते हैं पब्लिक जो है पब्लिक जो है ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के कौन से लोग होते हैं, दे हैव टोटल 11 पीपल इन देयर बोर्ड। एक्चुअली पहले जो है 9 मेंबर्स होते थे इनके बोर्ड में, नाउ जो रिसेंट लॉ पास हुआ है उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके दे हैव इंक्लूडेड 11 मेंबर्स। उसमें से जो 5 लोग होंगे वो पब्लिक से रिक्रूट होते हैं, और जो 6 मेंबर्स होते हैं वो हम प्राइवेट फर्म से रिक्रूट करते हैं। नो पब्लिक में से दे हैव कंक्रीट गाइडलाइंस के किस तरह से रिक्रूट करेंगे। सो पहला जो है लीगल फर्म से जो है हायर किया जाता है, जिस तरह से हमारी लीगल फर्म से पब्लिक की जो है सारा जुडिशियल सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम उसमें से। दूसरा ऑडिटर सेक्टर्स में से, इस तरह से दे हैव अ डिटेल प्लान कि कहाँ कहाँ से 5 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में से जो है mostly they focus on the people who are industrialists, who are the actually corporate law, financial services में अच्छे हो, investors हो, मतलब they should be very good at the business and having a very good name in the business, then they are able to recruit them, and they have the army of the staff. SSCP is very efficient uh, in terms of operations. They have more than 7 commissions, and each commission is actually looking after the major aspects of the company. They have 2 major functions. One is actually the registration, that called the registrar office. Registrar office, it is available in many cities of the Pakistan. There is also one of the registrar office in Sakhar, and they have one of the other executory body that is called the execution.
ये था एसएससीपी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि एसएससीपी खुद क्या है। एंड एसएससीपी इज अ रेगुलेशन बॉडी, और कहा जाता है कि जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में वर्ल्ड्स बेस्ट जो है एसएससीपी है इस वक्त में, क्योंकि एसएससीपी के जो ऑपरेशन से बड़े डिटेल है, इनके बहुत सारे कमीशन है, हर एक कमीशन का अपना अपना काम है। एक कमीशन जो है इंश्योरेंस को देख रही होती है, दूसरी कमीशन नॉन बैंकिंग को देख रही होती है, तीसरी कमीशन प्राइवेट सेक्टर्स को देख रही होती है, और उस कमीशन के अंदर हर एक सेक्टर के अलग अलग जो है ना वो है डेडिकेटेड पर्सन है। ये जो बंदा है, लेट्स सपोज इफ इज इंश्योरेंस कंपनी, तो कौन कौन सी इंश्योरेंस जो है dedicated people है that they would look after the car insurance, the life insurance, the other insurance, they look after each and everything in detail। और बड़े डेडिकेटेड जो है ना स्टाफ है इनके, दे वर्क वेरी एफिशिएंटली, दैट्स वाई। और ये बड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आती, ये सिर्फ अपने बाइबल को जो है फॉलो करते हैं। इनका जो बाइबल है, इनका अपना जो है एक्ट है, एसएससीपी एक्ट, जो कि इन्होंने खुद अप्रूव करवाया था, जो है फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने रिक्वेस्ट करके जो है ना असेंबली के थ्रू वो एक्ट बनवाया था। दे हैव ऑल्सो, जो इनके जो राइट्स हैं वो जो है कंपनीज एक्ट 2017 में मेंशन है। सो आई वुड नाउ डिस्कस सम अबाउट द रोल ऑफ एसएससीपी स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस। तो अभी मैं जो है रोल ऑफ एसएससीपी का इन टर्म्स ऑफ बिजनेस को मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ जी। If I talk about what's the role of SSCP, now SSCP, as I said, that it is being made by the federal government, means no intervention from any provincial government, so they have the authority to do. So federal government and the SSCP can put any reference to the Supreme Court or the higher court against any company. So one of the important role that have a minister in federal government, we hire ministers, right? So minister in charge actually having the rights or having the power, they can put reference against any one, even a person who, yeah, any bank, any company, और उस कंपनी में से कुछ लोग हैं उनके अगेंस्ट में भी कोई भी रेफरेंस पुट कर सकती है। ये फेडरल गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है, और फेडरल गवर्नमेंट एसएससीपी को इंस्ट्रक्ट कर सकती है, और एसएससीपी जो डायरेक्ट रिपोर्ट करती है वो फेडरल गवर्नमेंट को करती है। ठीक है जी। सो दे डायरेक्टली रिपोर्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट, और सबसे पावरफुल इनका ये राइट है कि दे कैन पुट रेफरेंस टू द कोर्ट अगेंस्ट एनीवन। उसके बाद कोर्ट उसको इन्वेस्टिगेट करता है, चेक करता है, they are giving an independent, and they can put a reference against any officer। ये नहीं है कि सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट में हो, एनी ऑफिसर के अगेंस्ट में भी हो सकता है। now what's the meaning by officer? Any company's auditor who is maybe indulged in any fraudulent activity, or anyone in the director or CEO position who is actually not being able to fulfill the regulation and the processes, so they can file the reference. Second important role that SSCP is having, the power that SSCP having is the which is defined in section number, now we are discussing about section number 8 and 9, right? So 8 and 9 when they have defined the role of SSCP. Now, section actually 9 discuss what the other power is. They have actually limit, जिस तरह से हमने जो है पढ़ा था कि जो हमारी पार्टनरशिप होती है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसके जो है अनलिमिटेड मेंबर्स होने चाहिए। बट यहाँ पे जिस तरह से मैंने कहा था, कंपनी एक्ट में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि हमारे मेंबर्स 20 से ना होने चाहिए ज्यादा। सो इक्वल और लेस देन 20, नॉट मोर देन 20। ठीक है जी। तो नॉट मोर देन 20 यहाँ पे एसएससीपी ने लिमिट लगाई। इफ एनी कंपनी इज हैविंग मोर देन 20, सो they have power to actually dismiss the company, or put some penalties to that company, keeping into that aspect.
हाँ, एक और भी प्रोविजन था जो हमने LLP में पढ़ा था, इफ any person or any company actually involving in deliberate fraudulent activity, जिसकी वजह से कंपनी जो है बैंकरप्ट हो जाती है, अगर कि वो डेलिबरेट एक जो है ना इंटेंडेड कोई एक्शन है, तो वहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी वंस यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन एनी जो है ना इंटेंडेड नेगेटिव एक्टिविटी. ठीक है जी. तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर LLP कंपनीज हु आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन एनी जो है ना not very good activities that is going to harm to the business. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, LLP को रजिस्टर करवाया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, खैर है, हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते. So it's not allowed. Anyone is speaking? Okay. So these were the major roles of the SSCP, and now I would like to start about the. Now you have somehow the idea about how SSCP is working. The Securities and Exchange Commission of Pakistan does not only look after the companies; they also look after the the stock market. They also look after the exchange rates. They also look after the variation in the currency. They also look after the जिस तरह से हम वो index बनाते हैं, वो भी इस तरह से वो बनाते हैं. They also give the company's name references. So इसका इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है ना एक important role है. Okay, now we want to discuss about the second element of our outline, that is the commencement of the business by the public limited company. Okay, commencement of the business. What are the some requirements that a public company should follow? Commencement of the business by public limited company. अगर मैं इसको public company के तो भी तो ठीक ही रहेगा. Any company which is registered in the SEC के क्या? So there we are. We will discuss somehow about the section number 19 to 26. So we'll discuss about the section number 19 to 26 in this part. Okay. तो सबसे पहला जो commencements का एक रूल है वो ये है कि any public company who is being registered under the a public company can't start operation and exercise its borrowing power. जो भी हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है, उनके पास दो पावर होते हैं. एक पावर ये होता है कि वो किसी भी बैंकिंग से या किसी भी फाइनेंसिंग फर्म से जो है बोरोइंग पावर ले सकती है. हम किसी इंडिविजुअल पे इतना ट्रस्ट नहीं करते. We put more trust on the company. Banking sector as compared to individual, वो companies को loan देना comparatively trusted अमल समझती, because they found this is a legal entity, they are operating in the business, so they probably give back the loans and other expenses. तो जिस तरह से मैंने बताया था पहले भी, जो प्राइवेट कंपनी होती है जैसे वो रजिस्टर्ड होती है, they can start their operation, they can start borrowing from different firms. But if it is the public sector company, so they cannot start their operations. Neither they can have a right to ask any borrowing until unless they fulfill some of the requirements. तो पहली requirement है वो ये है कि money has received for the minimum subscription. Now what's that mean? Money has received from minimum subscription. Now we know what is the meaning of subscription. जो भी हमने शेयर्स, एक होते हैं ऑथराइज्ड शेयर्स, दूसरे होते हैं हमारे इशूड शेयर्स. ये दोनों अलग होते हैं. ऑथराइज्ड शेयर ये होते हैं कि हमने डिसाइड किया है, लेट सपोज इन दोनों में डिफरेंस में थोड़ा सा बता दूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ऑथराइज्ड शेयर क्या होते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि हम मैक्सिमम इतने जो शेयर्स हैं वो मार्केट में जो है ना इशू करेंगे. लेट्स सपोज 1 मिलियन शेयर्स हम मार्केट में इशू करेंगे. ये ऑथराइज्ड शेयर है, और हमने जितने इशू किए हैं वो हमारी सब्सक्रिप्शन है कि हमने इशू कितने किए.
लेट्स सपोज हमने इशू किया, हमने ये कहा कि हम 1 मिलियन शेयर में से 50 जो 1000 शेयर्स हैं, या जो हमारे मतलब 50,000 के, सॉरी, जो 5 लाख शेयर है, मतलब 0.5 मिलियन है, जो हमारे 500,000 शेयर है, वो हम इशू कर रहे हैं। जो जितने भी शेयर्स आपने इशू किए हैं, जितने भी आपने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, उन सब का आपको मिनिमम जितनी सब्सक्रिप्शन आपने रखी है, उन सबको आपको अमाउंट रिसीव होना मैंडेटरी है। इफ यू हैव नॉट रिसीव द अमाउंट ऑफ योर सब्सक्रिप्शन, so you are not supposed to start your business before you have to receive all the amount of your subscription. Then director paid the amount of the money. Now there's one of the, sometimes ये होता है ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, हम जो बड़ी पोजीशंस के लोग होते हैं उनको शेयर्स देते हैं। तो डायरेक्टर्स को जब हम शेयर्स देते हैं कि आपके जी 20% शेयर्स हैं, तो उनसे भी हमें अमाउंट रिसीव करना मैंडेटरी है। तो डायरेक्ट पेड दी अमाउंट, ये भी रिक्वायरमेंट है कि आपके जो भी डायरेक्टर्स हैं जिनको आपने शेयर्स दिए, वो भी आपको अमाउंट पे करें। ओके, इफ यू हैव सेड, if the shares are available in the public, so this is your minimum subscription, right? उससे ज्यादा आप पब्लिक से शेयर परचेज भी नहीं कर सकते। सो देयर इज वन ऑफ द लिमिट दैट यू नीड टू रिसीव द पब्लिक शेयर, नो नीड टू रिसीव पब्लिक शेयर। आप पब्लिक शेयर को भी परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, किसको करनी पड़ेगी? ये डिक्लेरेशन बड़ी पोजीशन वाले जो लोग होते हैं उनको करनी पड़ेगी। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन दे नीड टू डू? दे नीड टू डिक्लेयर दैट कि जो है ना, हमने सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं एसएससीपी के फुलफिल कर लिए। तो डिक्लेरेशंस दे नीड टू डिक्लेयर देमसेल्फ कि वी हैव फुलफिल ऑल द वर्क्स। ये सीईओ कर सकता है, ये कोई डायरेक्टर पोजीशन पे जो बैठा है वो कर सकता है, ये these two people, even the secretary on behalf of the higher position can declare that we have fulfilled the all requirements to start the operations। जब वो डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस जो होती है वेरीफाई करती है कि जी इन्होंने सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली है, इन्होंने जो है एक स्टैट्यूटरी मीटिंग भी कर ली है, इन्होंने जो है नो नीड टू पब्लिश से शेयर वगैरह तो नहीं लिए, सो दे वेरीफाई। उसके बाद जो है दे गिव अस अ सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस लेटर। एक और चीज होती है कि जब भी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी कोई इश्यू करती है शेयर्स को, तो they send one of the prospectus of the invitation, they share। now question is, what is the prospectus? एक प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करती है, उस प्रोस्पेक्टस में थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द कंपनी। whenever you wanted to invite public to buy your shares, so you need to first issue the prospectus। कोई भी पब्लिक लिमिट कंपनी शेयर इशू करने से पहले एक प्रोस्पेक्टस देती है। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, गाइडलाइंस होती हैं शेयर्स के लिए कि हमें, उससे वो डिसाइड करते हैं क्या हमें ये शेयर्स परचेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो इन दैट सिचुएशन इट इज द सॉर्ट ऑफ द गाइडलाइंस गाइड जो कि उनको गाइड करती है। अगर किसी कंपनी ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया तो वो क्या इशू कर सकते हैं? They have other option that they have to do, they have to give the statement in lien of the prospectus। they need to issue statement in lien of prospectus, ठीक है। तो अगर इशू नहीं किया आपने प्रोस्पेक्टस, तो स्टेटमेंट इन लियोन ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको एसएससीपी की ऑफिस में जमा करवानी पड़ेगी। देन दे सजेस्ट यू कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द सेक्शन 19 व्हिच इज डिस्क्राइबिंग कि हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। और these all requirements is actually not followed by, ये जो मैंडेटरी किन कंपनी पे ये मैंडेटरी नहीं है। so any company which is before private company, private is converted
टू पब्लिक। ऐसी कंपनी जो पहले प्राइवेट थी अब पब्लिक में कन्वर्ट हुई है, तो इट इज नॉट द मैंडेटरी फॉर देम टू फॉलो दीज ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। ये उनके ऊपर नहीं है। सेकंड कंपनी, द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एनी प्राइवेट कंपनी विच इज कन्वर्टेड टू द पब्लिक कंपनी, इन दोनों पे जो है ना अप्लाई नहीं करते ये ऊपर वाले जो रूल्स जो मैंने अभी डिफाइन किए हैं। ये आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज दीज आर द रनिंग कंपनीज। उसके बाद वी हैव अ सेक्शन नंबर 20. So this is section number 19. Now what's the section number 20? Now section number 20 is actually discussing about okay, if any non-compliance happens, any non-compliance happen with the section number 20, section number 19 that we discuss here. अगर किसी ने इन सारी कंप्लाइंस को प्रॉपरली फॉलो अप नहीं किया तो दे वुड बी चार्ज विद द पेनल्टी। Now, what is the penalty for them? Penalty not exceeding level 2. So they have mentioned one of the, the levels of exceeding the penalty. Now, this is very important. Okay, I should first discuss what are those, penalties that we need to discuss. Now, let me share you. Okay, वो कौन सी penalties हैं? It is mentioned in page number 302. ये SSCP के जो बाइबल है जो उनका एक्ट है उसमें मेंशन है। It's 302. Okay, this is the penalty portion. इन्होंने ये पूरा स्केल स्टैंडर्ड बना दिया है। अभी मैं can you see the screen? Yes, ma'am. Okay, so this is the standard scale जिसमें 3 levels है. These are the level. This is the limits of the penalty, and this is the per day penalty during which we have default. And this is level 1. Level 1 is explaining the limit of the penalty up to 25,000, and level 2 is defining the limit of penalty up to the 5 lakh rupees, and the level 3 is actually defining the penalty limit up to 100 million. तो लेवल्स जो है वेरी करती हैं। अगर किसी ने सीवियर कोई चीज की है तो पेनल्टी जो है 2 लेवल तक जा सकती है, 1 लेवल तक जा सकती है। तो थ्रू आउट द सेक्शन वी विल डिफाइन द रूल्स ऑफ द पेनल्टी के किस किस तरह से हमें अप्लाई करनी होंगी और किस तरह से अप्लाई होते हैं। देन वी हैव सेक्शन नंबर 21. जो सेक्शन नंबर 21 है, इट्स डिस्कस अबाउट द section number 21 is discussing about the registered office and the publication of the name. Now, registered office and publication is describing कोई company अगर registered है तो उसको किस तरह से जो है communicate करना चाहिए. One of the rule is here that within the limit of 30 days, within the limits of the 30 days, you have to, tell your address to the SSCP. बहुत दफा ऐसे होता है कि हम registration करवा देते हैं, हम सिर्फ अपना province बताते हैं कि जी हम अपना जो प्रोविंस है वो स्टैट्यूटरी मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि हम सिंध प्रोविंस में कौन सी सिटी के अंदर करेंगे। तो इट इज लिमिट के विद इन 13 डेज आपको वो एड्रेस जो ऑफिशियल एड्रेस है जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, आपकी जो कम्युनिकेशन चैनल है वो बताया जाएगा, वो आपको रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज आपको वो एड्रेस वगैरह कम्युनिकेट करनी होगी। उसके बाद और क्या इनकी जो है वो है change in the place notice within the 15 days. If you are changing your office for any reason, if you are going to change the address, change address जो है वो communicate करना चाहिए within 15 days, इससे ज़्यादा नहीं। ये change address कैसे कर सकते हैं? Public organization के लिए proper procedure होता है। You need to get approval of
आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन देनी पड़ती है, जैसे मैंने कहा था कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, जिस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किया जाता है। तो जनरल जो हमारी मीटिंग्स होती है, जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के अंदर की, जो हमारी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर हम स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, तो वो 15 डेज में हमें कम्युनिकेट करना होगा। ठीक है जी। जो सेक्शन 22 नाउ डिस्कस अबाउट द सेक्शन नंबर 22। Section 22 discuss about the publication of the name by the company, कि company कहाँ कहाँ पे publication कर सकती है अपना नाम का, what is the requirement, publication of name by the company, what are the requirements where they need to put their name and etc. So one of the important requirement, they need to display their name outside of the firm, display name outside of their firm, and this is also one of the requirement कि जो उन्होंने certificate जो है get किया है registration का, जिसको कहा जाता है certificate of incorporation, वो display करना भी जरूरी है। display certificate of incorporation, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना होगा, उसकी काफी सारी कॉपीज डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस एट द कंपनी में नेम मेंशन करना जरूरी है। आपका नेम, आपके एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, आपका टेलीफोन, आपके जो है ईमेल, आपका जो फैक्स है, आपकी जो वेबसाइट है, जो भी कम्युनिकेशन चैनल है, व्हाटएवर इट इज, इट शुड बी मेंशन ऑन योर लेटर हेड। ये मेंशन होना लेटर हेड में जरूरी है, इट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। आप जो है और बस okay, the name of the company should also be mentioned in all the communication channel। जिस तरह से आप कोई चेक साइन करते हैं, जिस तरह से आपने कोई प्रोमिसरी जो है नोट साइन किया है, उस पे भी वो सारे जो आपके कंपनी के नेम है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली किसी के नाम पे नहीं होना चाहिए, वो आपकी कंपनी के नेम पे ही आप कम्युनिकेट करेंगे। Then section number 23 is actually talking about the common seal, के कंपनी के अंदर जो है कॉमन सील होनी चाहिए। इसको 23 के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि कॉमन सील जो है कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। कंपनी शुड हैव ठीक है, कॉमन सील होनी चाहिए, मतलब दैट सील शुड बी यूज्ड इन एवरीवेयर इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड ईटीसी। देन we'll discuss about the section number 24। ये मैं जब मैं पढ़ाऊंगी तो सेक्शन नंबर उसमें आपको दिखा दूंगी कि सेक्शन और क्या क्या बता रहे हैं। Now I'll discuss something about the section number 24, what it is discussing. Section 24 is discussing about the penalties for the non-publication of the name. This section is talking about the penalties for non-compliance, compliance of the publication। जो हमने पहले publication पढ़ी section number 20, यहाँ में पढ़ी ना पब्लिकेशन, सेक्शन नंबर 22 23 में पढ़ी कि कॉमन सील होना चाहिए, आपका पब्लिकेशन होनी चाहिए। तो दिस सेक्शन इज डिस्क्राइबिंग कि उसकी पेनल्टी क्या क्या हो सकती है। तो लेवल 1 पेनल्टी इज इम्पोर्टेंट कि अगर आपने कोई पब्लिकेशन में ऊंच नीच करती है तो लेवल 1 पेनल्टी आप पे मैंडेटरी हो जाएगी। वी डिस्कस अबाउट द लेवल 1 पेनल्टी, राइट, कि लेवल 1 पेनल्टी जो है ओके शरीफ, कॉमन सील में आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। तो अगर आपने नॉन कंप्लायंस की, पब्लिकेशन नहीं दी, आपने ईमेल एड्रेस सही नहीं लिखा, आपने चेक अपने नाम पे लिख दिया है, तो एससीपी जो है उसके थ्रू आपको पेनलाइज कर सकती है 25,000 तक, जो कि लेवल 1 पेनल्टी है। आपने कोई बिल साइन कर दिया तो अपने नाम पे नहीं किया तो उस पे भी पेनलाइज हो सकते हैं आप। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप किसी फर्म में जाएंगे ना, वो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चेक देंगे। अगर कोई रेस्टोरेंट वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन नाम पे देगा, किसी पर्सनल नाम पे नहीं देगा, अगर कि वो रजिस्टर्ड होगा तो।
Common seal क्या होता है? Common seal, Sakhar IB have a common seal. They have a proper logo that is being stamped everywhere in their envelopes, in their, in their websites. So they have the common seal. They have the common identity logo. Their logo is actually representing their common seal everywhere. Even if they are going to have any confidential discussion, so they would be having the common seal. कि एक बंदा होगा जो authorized होगा, वो ही इसको use करेगा, और जो है ना वो ही उसको जो है ना जो है ना साइन वगैरह करके देगा. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हमारी कॉमन सील होनी चाहिए, आइडेंटिटी कॉमन होनी चाहिए. जो ऑथराइज बंदा है वो भी कॉमन होना चाहिए कि एक ही बंदा हर चीज को ऑथराइज करेगा. तो डेलीगेशन एंड द chain of command should be clear कि who is actually responsible for which of the things. Section number 20, I think you got it, Sharif. Section number 25 is discussing about the publication of the authorized as well as paid up capital. So I'll discuss something about what is the, paid up capital. So section 25 is discussing about the publication of the authorized as well as paid up capital. You need to publicize. Publication of authorized and paid up capital. What is authorized and what is paid up capital? ये पहले ही मैंने discuss कर लिया है कि authorized means the sum of the shares that you have decided that you wanted to issue in future. ये हमारा authorized होता है. Paid up capital क्या होता है कि जितना हमने issue किया. Let's suppose authorized share इतने हैं. हमारी जो कंपनी है, लेट्स सपोज प्रीवियस कंपनी का नाम लिख लेते हैं, AAA फर्नीचर. जो AAA फर्नीचर कंपनी है उसके जो ऑथराइज्ड शेयर्स हैं वो हमने 1 मिलियन रखे हैं, और हमने ये कहा है कि ऑथराइज्ड शेयर अगर 1 मिलियन है तो हम जो है ना इशू जो शेयर करेंगे इस साल, इसमें से लेट्स सपोज वी वांटेड टू इशू ओनली 0.5 मिलियन. तो दिस इज कॉल्ड दी इशू शेयर. और इशू जो शेयर होंगे उसके अमाउंट भी पे होंगे. सो द अमाउंट दैट वी रिसीव एक्चुअली become the paid up capital, right? So that this is the difference between authorized and the paid up capital. तो वो भी हमें पब्लिसाइज करना होगा कि इतना हमने ऑथराइज किया है, हम इतना जो है रिसीव किया है. सो यू नीड टू पब्लिश इट एज वेल एज पीपल कैन रीड इट. Now, section number 25 is actually discussing about a business and objective of the company. This section is mostly discussing कि company में business कैसा होना चाहिए. The company में business should be lawful. The business should follow the legal regulation terms that is being defined by the government of Pakistan. कोई इस तरह का illegal business नहीं होना चाहिए, और proper registration process होना चाहिए. So this section is mostly discussing about what sort of business you can start. So I'm going quickly towards these, Companies Act 2017. हम उसमें से sections को देखते हैं कि हमने अभी कौन कौन से sections discuss किए. थोड़ी हमने discuss किया. I can discuss about 19, 20 and 21, 22, 23, 24, 20. Okay, we started discuss from the 19. So this is the 19 commencements of the business by the public company. So they have defined each and every section of this, act. A public company shall not start its operation or exercise any borrowing power unless the share. I have also discussed this. I'm quickly reading out for your convenience. The language is a bit difficult mentioned in this act, but if you are understanding the concept, then it's very easy. Shares held subject to the payment of the whole amount thereof in cash has been allocated to an amount not less than in the whole than the minimum subscription, and the money has been received by the company. Now you also decide the authorized shares and the minimum subscription कि हम let's suppose हमने यहाँ पे decide किया था ना अभी थोड़ी देर पहले
कि जो है ना व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है 0.5 मिलियन है। तो जब तक आपको 0.5 मिलियन के रिसीव नहीं होंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक, तब तक आप स्टार्ट नहीं कर सकते। Every director of the company has paid to the company full amount of each of the business taken contracted to be taken by him or her. So this section is talking about कि आपके जो भी डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने जो है शेयर्स परचेज किए हैं कंपनी से या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं परचेज करूंगा, उसका भी अमाउंट रिसीव करना कंपनी के लिए मैंडेटरी है। Then the clause number C is discussing about the no money is or may become liable to be repaid to the applicants for any share which has been offered for the public subscription. तो ये मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि जो भी पब्लिक सब्सक्रिप्शन है वो आप किसी प्राइवेट को नहीं दे सकते। This is the limitation. Okay. There has been filed with the registrar a duly verified declaration by the chief executive directors or the secretary in the specific form. ये हमें डिसाइड करा कि आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, जो हमने पहले ही डिसाइड किया, हमने पहले ही डिस्कस किया कि यू नीड टू डिक्लेयर, एनी सीईओ ऑफ द कंपनी और डायरेक्टर पोजीशन शुड डिक्लेयर कि हमने ये सारी ऑब्लिगेशन क्लियर कर दी। उसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस होती है वेरीफाई करती है, इफ दे फाइंड कि अभी तक ये प्रॉपर नहीं है कि वो कुछ पेन कर सकती है कंपनी को कुछ टाइम के लिए, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है कि आप पहले ये चीजें कंप्लीट करें, उसके बाद हम आपको जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट देंगे। कमेंसमेंट बिजनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना जरूरी है। In the case of company which has not issued a prospectus inviting the public to subscribe for its shares, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रोस्पेक्टस हम देते हैं कोई भी पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, फर्स्ट टाइम दे इशू दी प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो इफ यू हैव नॉट इशूड दैट प्रोस्पेक्टस तो क्या करना चाहिए, there has been filed with the registrar a statement in lien of the prospectus as per the second schedule, so they have defined the rules for that prospectus कि कैसे देनी चाहिए। Okay. Now what is the minimum subscription, ये उसको define किया गया है। Then the registrar shall on filing of the duty verify the declaration according with the provision subsection number 1 कि वो सारी requirements उन्होंने fulfill की है नहीं की है, fit है तो ठीक है, नहीं है तो they need to hold it, or these all sections are not applicable to the company which is converted to private to the public, and also company which is the limited by the guarantee and not having any share. इन companies पे ये rules follow नहीं होते। Now we'll discuss about the section number 20 that we already discussed। यहाँ पे discuss करें commencements of the non-compliance of the section number 19। जो भी हमने section 19 में discuss किया है, अगर उसमें कोई भी non-compliance होती है तो what would be the penalty? If any company start its business operation or exercises the borrowing powers in, it is the contravention of the section number 19, every officer or other person who is responsible for this contravention shall without prejudice to other liabilities to liable to penalize not exceeding level 2। लेवल 2 को हमने डिस्कस किया था तकरीबन 5 लाख थी, तो वो हम पेनल्टी पुट कर सकते हैं। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी बिफोर द डेट it is entitled to commencement business shall be provisional only and shall not be binding on the company until the date। तो यहाँ पे वो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट आपको कब मिला, तो उसके बाद ही आप कुछ चीज स्टार्ट कर सकते हैं। Now section number 21 is discussing about the registered office and the publication of the name। ये भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे होनी चाहिए। 30 दिनों के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन जो है वो कम्युनिकेट करनी चाहिए रजिस्ट्रार ऑफिस में। इफ यू आर गोइंग टू मेक एनी चेंजेस सो इट इज इम्पोर्टेंट कि 15 डेज के अंदर आप उसको कम्युनिकेट करें। चेंजेस जो हैं आप सिटीज में कर सकते हैं, वो किसके थ्रू कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सब सेक्शन तो देयर वुड बी, now they are defining about the penalty के penalize not exceeding the level 1 on the standard scale। Now section 22 is talking about the publication of the name of the company। Every company shall display clear name in English or Urdu character
in the names incorporated manner outside of their registered office. उसके बाद they should display the certificate of commencements and certificate of incorporation in everywhere in the business. they should उनके सारे email registered office telephone printed letter सब चीजें letter head में होनी चाहिए. उनका अपना name होनी चाहिए legible English और उर्दू में सब कुछ में. बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रोमिसरी नोट में, इंडोर्समेंट पे, चेक्स पे, मनी ऑफ एक्सचेंज पे, इनवाइसेस पे, बिल्स पे, रिसिप्ट पे, एवरीवेयर देयर शुड बी देयर ओन नेम. Section number 22 is talking about the common seal. The common seal क्या होती है? Every company should have a common seal. A common seal must be seal having the company's name engraved on its legible form. जिस तरह से हमारा logo बनता है, it is properly engraved and it has to be the identity for the company. If any one of the provision of this section is again, if you are going to आपका कोई controversial is तो उस officer को penalize किया जाएगा. लेवल 1 पेनल्टी इस पे है अगर आप प्रॉपर्ली कॉमन सील नहीं यूज करते तो. ओके, पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द नेम. अगर हम नॉन कंप्लायंस ऑफ द नेम पे करते हैं तो दे हैव द पेनल्टीज ऑफ नॉट एक्सीडिंग द लेवल 1. एंड किसी ऑफिसर के ऊपर भी इशू की जा सकती है अगर उन्होंने प्रॉपर्ली बिल ऑफ एक्सचेंज को फॉलो नहीं किया तो. नाउ पब्लिकेशन ऑफ द ऑथराइज्ड एज वेल एज द पेड अप कैपिटल. यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि आपने पेड अप कैपिटल को ऑथराइज की सूरत में प्रॉपर्ली उसको जो है फॉलो अप करना है, मेंशन करना है. एनी कंपनी व्हिच मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शन 1 एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज पार्टी to the default shall be liable to penalty not exceeding level 1. So publication of the authorized as well as the paid up capital is important. The 26th last section that we discuss is talking about the business and objective of the business. कि business कैसा होना चाहिए. A company may carry the business or undertake any lawful business or activity and do not act or enter into any transaction you have been accidental. So it's prohibited that you have to be involved and undertake the legitimate business. So you define some principal line for the business. What is the principal line? You decide what business I'm going to take, how much of money I am supposed to invest. So you decide your business line for earning, you decide your business line for borrowing, you decide for business line. तो आप उस business line को accidentally cross नहीं कर सकते. You have to properly communicate and tell. So they have also mentioned what we meaning by the business line. बड़ा explicit चीजों को define किया गया, आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी. A company shall not engage in business which is prohibited by law and being forced in the Pakistan. Any registered by any law regulation को अगर follow नहीं करते तो जो है आपको penalize किया जाएगा. So these were the section related to the commencements of the business. Okay, now I would start the meeting portion. उससे पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं. आप भी भले जो है थोड़ा सा ब्रेक करें, रिलैक्स हो जाए. I am going to take break for almost कितनी टाइम का ब्रेक लें जी? Hurry with me. 12 बजे तक मैं ठीक है अब्दुल्ला भी 12 बजे तक का ब्रेक लेते हैं. यस हुजैफा, आई गॉट इट. बस हम 11 बजे तक का ब्रेक लेते हैं. 11 बजे से फिर इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करेंगे. बस फिर एक ही टॉपिक रहता है मीटिंग का, उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह विद इन 20 to 30 मिनट्स. उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, अटेंडेंस भी लगा देंगे. ठीक है जी. We are coming back on 11. See you.
चला यार अभी हाँ अभी बन रहा है 10 मिनट है आराम है इधर 10 मिनट पड़े हमारी ब्रेक 11 बजे खत्म होगी हमारी क्लास 11 बजे शुरू हो जाएगी यार हसन माइक ऑफ करो अच्छा बोलो वो तो आपने लड़के क्या है लड़के जैसा ही बोला हालांकि हसन माइक बंद करना थोड़ा टाइम कितना लगेगा आधा घंटा सही क्या बात ठीक अभी टाइम लगेगा भाईजान वे हसन बाइक बंद कमाड़ा खीरना
Libera المين سبحان في تومس Dulu ham bush thobi na laga juta din juga es juga na yaar हाँ दे पेशकश भी आज तो अरबी लेट कितना है अच्छा यहाँ सामने मोमन जी कम ज़रूरी आपको तस्वीर दिखाऊँ दिखाने में क्या पेशकश क्यों ले तो हम यहाँ अपने रिलेशन से तब मरे Assalamu alaikum. Welcome back. Let me mark your attendance for the second class, then I'll mark for the last class. Okay. Recording, yes. Types of the meetings. Types of meeting is actually mentioned in section number 131 to 135. It is explaining the all types of the meeting. Usually we have many types of the meeting, but that is the proper restriction is being put on certain types of the meeting. So we'll discuss about that only. That what are the certain. One of the important type of the meeting that is we also discussed that is called the statutory meeting of the company. Kindly silent. Put your mic on silent. I need to stop it. So I was discussing first of the one of the type of the meeting is actually statutory meeting. Statutory meeting. Statutory meeting, one is the statutory meeting, other is the annual general meeting, and the third one is the extraordinary meeting. First of all, let's talk something about the statutory meeting. Statutory meeting ऐसी होती है कि when you register your company, especially the public limited company, and the other have the different categories. If it is the public limited company, then a statutory meeting is the mandatory to be held within 180 days. 180 days के अंदर आपको अपनी statutory meeting करनी होगी. That is mandatory requirement by the SECP under this act. Notice of the meeting. आपको जो meeting का notice है, हर एक meeting का notice जो है वो 21 days before issue करना होगा. 21 days before the meeting. अब जो हम वो statutory meeting करेंगे, उस statutory meeting के साथ जो हम नोटिस निकालेंगे उसके साथ एक रिपोर्ट बनती है that we call the statutory report, and that statutory report is also mandatory to be sent along with the notice of the meeting. Now that what is the statutory report?
Statutory report is contain many of the things. Sometimes it contains the numbers of the shares that you have decided to be allocated. It has the numbers of the directors, their names, their addresses, their positions, everything about the director. It has also the details of the cash received for your authorized and also the subscribed shares. So statutory meeting is something, the detailed informative report about the meeting, that हम क्या क्या discuss करेंगे and what are the requirement that we need to discuss in our statutory meeting. और statutory meeting में कौन कौन लोग हो सकते हैं? All the people who are shared in the company is actually greater, जिसका शेयर सबसे ज्यादा होगा या मेजर शेयर होल्डर्स होंगे, उन सबको यहाँ पे स्टैट्यूटरी मीटिंग में हमें कॉल करना होगा, अपने BODs को कॉल करना होगा. So you need to form everything. Sometimes स्टैट्यूटरी मीटिंग में जो है हम उन सारे कंसर्न लोगों को जो है इन्फॉर्म कर रहे होते अपनी कंपनी के बारे में. We decide a lot of things in this statutory meeting because this is the very first meeting. ये कितनी दफा होती हैं? ये in the life of company only one time happen at the very beginning. लाइफ ऑफ द कंपनी में सिर्फ वन टाइम होती है एट द वेरी बिगनिंग. और अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, इफ एनीवन नॉट, if you did not meet this requirement, if not meeting the requirements, so there are some sort of penalties. जो listed company है उसकी penalty है तकरीबन level 2 की, और अगर कोई other company है उसकी जो penalty है other company में से any single company, or any single company is actually not liable, any company which is having the members of 20 or more than 20, so they have the level 2 penalty and level 1 penalty. So this is the statutory meeting. The other form of meeting is your annual meeting. Now, what is the annual general meeting? Now, annual general meeting is actually the meeting that company should had every year. Now, this is the meeting that you should conduct every year. ये ऐसी मीटिंग होती है जो हर साल कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कंपनी स्टार्ट करने के फौरन बाद every just as you start your company, so within 6 months you have to conduct this meeting. So within 6 months you need to call this meeting. और एनुअल जनरल मीटिंग में बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं, और इसका भी जो नोटिस होता है वो हमें 21 days before निकालना पड़ेगा कि मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड. और इसके अंदर हम क्या क्या डिसाइड करते हैं. अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसकी मीटिंग कहाँ पे होगी इसकी भी पूरी डिटेल दी गई है. इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी, सो देयर मीटिंग शुड बी हेल्ड इन देयर रजिस्टर्ड ऑफिस. नंबर 1, their registered office. If people are actually from outside and somewhere other, तो एक जो है नियरेस्ट सिटी जो है वहां पे भी हम मीटिंग एलोकेट कर सकते हैं. तो दो प्रोविजन है यहाँ पे, या तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस में करें या आप नियर बाय सिटी के अंदर भी इस मीटिंग को कॉल कर सकते हैं. जिस तरह से वी हैव AACSB, और AACSB के पॉलिसीज के हिसाब से जब तक AACSB की टीम खुद यूनिवर्सिटी को विजिट नहीं करती तब तक जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, यूनिवर्सिटी को जो है ना एक्रेडिटेड नहीं करती. बट देयर इज आल्सो वन ऑफ द प्रोविजन, अगर सिटी जो है बहुत डिफिकल्ट है और हालात बेहतर नहीं, ऐसी सिचुएशन में कोई नियर बाय कंट्री में भी वो मीटिंग होल्ड कर सकते हैं. तो बेसिकली दे आर फ्रॉम अमेरिका. तो जब सक्कर आईपी की जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने दुबई में की थी. हाँ, नियर बाय सिटी फॉर अस एंड फॉर न्यूट्रल प्लेसेस दुबई. सो इट इज आल्सो ओके कि अगर कोई शेयर होल्डर्स जो है वो नहीं आ सकते या मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स आर फ्रॉम आउटसाइड, तो उस सिचुएशन में नियर बाय सिटी में कर सकते हैं. और हम उनको इट इज आल्सो मैंडेटरी कि हम उनको वीडियो लिंक जरूर शेयर करें. उन लोगों को जो शेयर होल्डर्स मेजर है और मैंडेटरी उनकी होनी चाहिए, तो उनके पास हमें वीडियो लिंक जरूर शेयर करनी पड़ेगी. एंड
लिस्टेड कंपनी है, अगर इट इज द लिस्टेड कंपनी है तो एनुअल जनरल मीटिंग की जो है, इफ इट्स अ लिस्टेड कंपनी, सो यू नीड टू इवन गिव द नोटिस, you need to actually give notice to the commission, notice to the commission को भी देना चाहिए, and you need to publish in any national newspaper, either it's the Urdu or English, so you need to even publish the meeting that we are going to conduct the annual general meeting. तो जो भी shareholders हैं, major shareholders हैं, वो भी उनको तो specially invitation भी जाएगा मीटिंग का, वीडियो लिंक भी आप उनको सेंड करेंगे अगर वो एक्सक्यूज करते हैं, नहीं आते तो ऐसी सिचुएशन में वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं. Why these meetings are being actually, you know, given that much of detail? Sometimes हम ऐसी meetings में जो है बहुत सारे फैसले ले रहे होते हैं. You are the major shareholders, आपका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, but there's some decision being taken in which you are not favor, you are not actually giving any favor to that decision, और इसकी वजह से आपको कोई loss हो जाते हैं, your share value is being decreased. That's why they have put a lot of restriction, especially on the meetings. तो एनुअल जनरल मीटिंग्स में हम कौन कौन सी चीजें जो है ना वो करते हैं, डिस्कस करते हैं, हमारा एजेंडा क्या होता है इस मीटिंग का. जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है मोस्टली उसमें जो है ना, जिस तरह से हम हायरिंग करते हैं किसी भी डायरेक्टर पोजीशन की, हायरिंग के लिए भी कॉल की जा सकती है. कोई अर्जेंट कोई डिस्कशन है, अर्जेंट तो नहीं मतलब कोई पॉलिसी हमने बनानी है, उसका अप्रूवल लेना है. जिस तरह सखर IBA यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल हमारी सेनेट की मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं एनुअल मीटिंग. उस सेनेट मीटिंग के अंदर जो भी हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्रूवल लेने होते हैं, फिर हम उस कमेटी के थ्रू अप्रूवल लेते हैं, तभी हम करवा दे सकते हैं. जिस तरह से अभी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से हमने ग्रेडिंग पॉलिसी में शिफ्ट किया था, तो सबसे पहले हमारी इंटरनल मीटिंग हुई कि हमें ये पॉलिसी देनी चाहिए स्टूडेंट्स को फेवर के हिसाब से. उसके बाद हमने एकेडमिक काउंसिल में उसको रखा कि हमें ये चीज़ देनी चाहिए, जस्टिफाई किया. उसके बाद फिर हमने जो है ना सेनेट के थ्रू उस ईयर के हिसाब से वो चीज अप्रूव करवाई. तो दैट वाज द मेजर डिसीजन दैट नीडेड टू बी कंसीडर्ड इन एवरीवन्स यू नो परमिशन, एंड सबको पता होनी चाहिए. ऐसे बहुत सारी कंपनीज के अंदर फैसले होते हैं, जिस तरह से हायरिंग हो गया, कोई पॉलिसी हो गई, कोई चीज को हम रिक्रूट करना चाहते हैं, या कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं किसी के साथ, या कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई गुड है हमारी, कोई हम शेयर्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो एवरीथिंग कैन बी डिस्कस इन योर एनुअल जर्नल मीटिंग. और इसका नोटिस भी हमें 21 दिन पहले जो है जारी करना होगा. इसके अलावा जो है एक और मीटिंग होती है, और ये हर ईयर में हमें करनी चाहिए. देयर इज वन ऑफ द थिंग, अगर आपकी एनुअल जर्नल मीटिंग, क्योंकि बिकॉज आपको विद इन 6 months कॉल करनी है, आप जैसे स्टार्ट करते हैं बिजनेस, विद इन 6 months यू हैव टू कॉल इट. तो देयर इज वन ऑफ द प्रोविजन, इफ you are going to call your annual journal meeting before your statutory meeting, तो फिर statutory meeting करने की कोई जरूरत नहीं है. Let's suppose आपने कंपनी स्टार्ट की है, विद इन अ मंथ आपने एनुअल जर्नल मीटिंग कॉल कर लिया. अब वो एनुअल जनरल मीटिंग जब हो गई है तो अब स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं. हाँ, अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग नहीं की है फिर तो स्टैट्यूटरी मीटिंग करना विद इन 80 days मैंडेटरी है. और एनुअल जनरल मीटिंग आपने, जैसे मैंने कहा कि आपको हर ईयर में करनी होगी, यू नीड टू डिसाइड द डेट, यू नो, मंथ्स फॉर द मीटिंग एवरी ईयर. आप इसमें डिले कर सकते हैं. इज देयर एनी प्रोविजन? यस, यू कैन डिले अप टू 30 days ओनली. अप टू 30 days, वो भी हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा व्हाई वी डिले दैट मीटिंग. हमें फिर रीजन देना पड़ेगा, एंड वी नीड टू कम्युनिकेट इट विद SSCP. अगर इस कंप्लायंस को कोई फॉलो नहीं करता, इफ वी आर नॉट गोना यू नो फॉलो दिस कंप्लायंस, तो उनको पेनल्टी लगेगी. अगर लिस्टेड कंपनी है तो लेवल 2 पेनल्टी, अगर अदर कंपनी है तो लेवल 1 पेनल्टी. ठीक है जी. तो दिस इज द रूल्स फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग, एंड देयर इज अदर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ द मीटिंग दैट वी कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग. नाउ व्हाट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग?
Now, extraordinary general meeting is special categories of the meeting. Sometimes these meetings are being called so quickly and urgently. कोई suddenly change आ गया है, उसकी वजह से मैं बताती हूँ उसको डिटेल में. Extraordinary general meeting. जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है? ये ऐसी मीटिंग होती है जो हम लाइफ ऑफ द कंपनी में बहुत दफा भी कॉल कर सकते हैं, भले कभी भी कॉल ना करें, इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट. ये क्यों की कॉल की जाती है? इसको कॉल करने के लिए कोई अर्जेंट रीजन होना चाहिए. लेट्स सपोज आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो गई है इस ईयर की और कोई सडनली इश्यू आ गया. लेट्स सपोज आपकी स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है, आप अपनी डेट स्ट्रक्चर को बहुत क्विकली चेंज करना चाहते हैं, कोविड की वजह से बड़े इश्यू हो गए, मार्केट फेल हो रही है, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट लूज हो रहा है, आपका कोई जो है आप डिफेम हो रहे हैं मार्केट में, your goodwill is going to be decreased day by day. So these all situations is somehow the emergency situation. These are somehow emergency situation and need to be tackled so quickly. In that situation, you may call the extraordinary meeting. और जनरल मीटिंग से भी इसका फिर हम अप्रूवल ले सकते हैं. अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल भी करवानी है विद इन अ फ्यू डेज, जिसमें हमारे लिमिटेड शेयर्स वगैरह होते हैं, लिमिटेड पीपल्स होते हैं, उसको तो यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम एनुअल जनरल मीटिंग. के एनुअल जनरल मीटिंग में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको कह सकते हैं कि इस साल हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग भी कॉल करेंगे, उसका पर्पस ये होगा. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग मैंडेटरी नहीं है कि हमें करवानी चाहिए, पर हम करवा सकते हैं. चाहे तो जो है हर महीने करवाएं, कोई मसला नहीं है, चाहे तो पूरी लाइफ में एक बार भी ना करवाएं, इट्स अप टू यू. और भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं कंपनीज के अंदर, जैसे क्रेडिटर्स मीटिंग होती हैं, बीओडीज मीटिंग्स होती हैं, ऐसे तो बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, पर हम हर किसी मीटिंग को ऐड नहीं करते. ये 3 ऐसी मीटिंग्स हैं जिनको प्रॉपरली कॉल करना, रिकॉर्ड करना, इसके लिए भी वही रूल्स हैं कि 21 डेज पहले जो है हमें नोटिस देना चाहिए, हमें वीडियो लिंक्स जो है जरूर शेयर करनी चाहिए जो हमारे शेयर होल्डर से, मेजर शेयर होल्डर स्पेशली, और ये सारी जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं इसमें हम जरूर फॉलो करते हैं. दिस इज द स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. Now, there are a few of the things that you need to, keep in mind, that whenever we are going to call any meeting, there are certain rule for the meeting. अगर provision is to meeting and the votings, तो प्रोविजंस क्या क्या है कि मीटिंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, कौन से जो है डेकोरम हमें फॉलो करने चाहिए किसी भी मीटिंग के लिए, तो उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं बहुत क्विकली. और दिस इज सेक्शन नंबर 134 that I'm discussing. 134 जो previous section थे वो मैंने लिख दिए. 133 है, 132, 131. ठीक है? I couldn't write it, but you need to read it by yourself. Provisions. Provisions is to meeting and voting. क्या क्या provisions है meetings के and votes के? तो there's one of the things that you meeting के अंदर meeting की place, मीटिंग का ड्यूरेशन, मीटिंग का ड्यूरेशन होना चाहिए कि मीटिंग कितने जोस की होगी, कितने आवर्स की होगी, मीटिंग एजेंडा, इवन इफ यू आर गोइंग टू कॉल समवन, उस लोगों की, उसकी पूरी लोगों की लिस्ट. अगर इफ इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और अ लिस्टेड कंपनी, if it is a listed company, the person who is having a 10% of the total paid up capital, अगर कोई बंदा लिस्टेड कंपनी में 10% जो है ना ओनर है पेड अप कैपिटल का, ऐसी सिचुएशन में उसको कॉल करना हमारे लिए मैंडेटरी है. इट इज मैंडेटरी टू कॉल देम. अगर वो नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक इज मैंडेटरी, एनी हाउ दे हैव टू बी इन द मीटिंग. उसके बाद जनरल मीटिंग में जो है मैंने बताया स्टेटमेंट भी, हम स्टेटमेंट्स जनरल मीटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं. हम जनरल मीटिंग्स में डिविडेंड्स पॉलिसी को भी डिस्कस कर सकते हैं.
तो दिस इज ऑल्सो ओके कि हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। तो प्रोविजन ऑफ द मीटिंग्स में 21 डेज पहले कॉल करनी चाहिए, मीटिंग की टाइम, ड्यूरेशन, एजेंडा, जो पेड अप शेयर में 10% के जो हैं ओनर्स है उनको भी कॉल करनी चाहिए। एंड देयर इज वन ऑफ द अदर थिंग दैट इज कॉल्ड द quorum of the meeting. Now what is the quorum of the meeting? This is something, section number 135 is discussing about the quorum of the meeting. Quorum of the meeting क्या होता है? If I say quorum of general meeting, quorum का मतलब होता है minimum number of the participants in the meeting. Quorum means minimum number of the participants of the meeting. कितने numbers होने चाहिए participants की हम meeting carry कर सकते हैं और कितने number के साथ हम carry नहीं कर सकते. There are certain rules mentioned in Companies Act 2017. It is said that if you are a public company, so it's mandatory that you should be having not less than 10 people. अगर 10 people से कम अगर लोग हैं तो आप मीटिंग नहीं कर सकते। तो मिनिमम नंबर इज 10%। इससे ज्यादा हो सकते हैं पर इससे कम नहीं हो सकते। कुछ लोग अगर हमें वीडियो से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओके, दे कैन ज्वाइन अस, वीडियो लिंक इज आल्सो अलाउड। और क्या रूल है? देयर इज आल्सो वन ऑफ द रूल दैट इज अप्लाइड इनटू योर पब्लिक मीटिंग, दैट इज शेयर शुड बी 25%। जो 10% पीपल हैं उनका 25% वोटिंग राइट होना चाहिए। वोटिंग राइट मतलब दे शुड possess at least 25% voting right if you want to carry the meeting. And if there is a situation of the other company, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में the member should be not less than 2. And what is the rule for the paid up capitals and the remaining things? So it is also the 25% of the rights, voting rights. के जो राइट्स हैं 25% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर सिचुएशन ये बनती है कि हमने लेट्स सपोज 25 लोगों को कॉल किया है, उसमें से हमारे पास जो है 8 लोग आ गए हैं, क्या हम मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं? नॉट। You need to adjourn the meeting. If your number is not fulfilling, so you need to adjourn the meeting. What is adjourn? Means postpone. आपको ऐसी सिचुएशन में मीटिंग को पोस्टपोन करना होगा. It is mandatory. You cannot carry the meeting if it is a public limited company and only 8 people have participated. So you have to adjourn the meeting and you have to decide the other day of the meeting. And listed company अगर इसको फॉलो नहीं करती तो उनको पेनल्टी लगती है लेवल 2 की. And if there is other company, there is the penalty of level 1. Then there is other thing that is important that I should mention here. बहुत दफा ऐसे होता है कि काफी members late हो जाते हैं मीटिंग के अंदर. आपने स्टार्ट की है मीटिंग, लेट्स सपोज आपने मीटिंग का टाइम रखा लेट्स सपोज 9 AM रखा, but there's few people that have came actually at 10 AM. This is not allowed. आप 30 minutes late हो सकते हो, 30 minutes only. You can be 30 minutes late if you are coming, half an hour late, so your entry is not included. In that situation, it is. तो जब हम minutes of meeting बनाते हैं, regulations बनाते हैं, तो उसमें हम specify करते हैं कि आपको इस time पे entry होगी या इस time पे नहीं होगी. So this is also some of the important regulations for any public and private company. And this is how we concluded our all the parts of our course. यहाँ तक हमने तकरीबन अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया है. इसमें से कोई क्वेश्चन है, so you are welcome to ask any question. जी, do you have any question? हेलो, मेरे ख्याल से सब आ गए.
Okay, it's okay. Who can call a meeting? Hamza is asking, who can call the meeting? Meeting is being called by the people who are actually जिनकी responsibility है, जिनको हमने hire किया है. जिस तरह से IBA में जो meeting call करने की responsibility है वो registrar office की. So this is how they need to call. So they are the responsible people. अगर company में responsibility है तो हम जो CEO को hire करते हैं तो उनको बताते हैं you need to hire. तो जिनकी JDs में आता है उनको ये उनकी responsibility हो जाती है. They need to call that meeting. ठीक है? So these are some of the important things that we discuss. If you have any question, so inshallah in the next class you can bring the question. Next class में जो है हम, let me just off this recording.